Good morning to my dear students. Students, as we are discussing about genetics and Mendel's experiment. In my previous video, I explained about the monohybrid cross and I told you that how Mendel observed the inheritance of one character. Now today I will discuss about dihybrid cross and I will tell you that how Mendel observed two different characters or heredity of two different genes in a single time, and on the basis of his observation he concluded a result, and on the basis of that particular result he proposed the law of independent assortment. And what is it, I am going to tell you that. ठीक है, while Mendel was observing the monohybrid cross results, ठीक है, then he observed and he proposed two different laws, law of dominance and law of segregation. And you know very well that what is law of dominance, only one character expresses itself in F1 generation, while due to the law of segregation we observe that while two hybrid tall plants were crossed in F2 generation, we observed one dwarf, means the characters are going to segregate or assort themselves independently. ठीक है. Now on the while he was performing monohybrid cross, then after that he performed a dihybrid cross. Actually I want to tell you that what is the meaning of dihybrid cross. When in a single cross, ठीक है, we are going to observe two द इनहेरिटेंस ऑफ टू करेक्टर्स टुगेदर, यानी जब क्रॉस दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस करा रहे हैं और उन दोनों प्लांट्स की जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगी, उस पैदा होने वाली ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स में दो करेक्टर्स की एक साथ स्टडी की जाती है, उसे डायहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं. मीन्स वाइल वी आर ऑब्जर्विंग द इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन इन अ सिंगल टाइम, मीन्स दो अलग अलग जीन दो अलग अलग करेक्टर्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किस तरह से इनहेरिटेंस शो करेंगे, किस तरह से वो अगली जनरेशन में अपने करेक्टर्स को शो करेंगे, अगर उसकी स्टडी की जाती है तो उसको बोला जाता है dihybrid cross. तो वेरी सिंपल, while we are while we are studying only single character in a single cross, then it is called monohybrid cross. While we are observing two characters together in a single cross, then it is called as law of sorry then it is called as dihybrid cross. And Mendel, as we know that Mendel studied about seven different characters, so he selected एनी टू कैरेक्टर्स. ठीक है, कोई दो करेक्टर उन्होंने चूज़ कर लिए और ये करेक्टर्स अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं इन्हें पेरेंट्स में भी चेक किया, उसके बाद उनकी आने वाली F1 और F2 जनरेशन में भी चेक किया. ठीक है, एंड आफ्टर दैट ही प्रपोज्ड अ लॉ एंड दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, एंड दिस लॉ, व्हाट इज दिस लॉ, आई विल टेल यू लेटर ऑन. इनिशियली आई वांट टू टेल यू दैट आई वांट टू एक्सप्लेन हाउ ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट. तो I have a figure, and with the help of that figure I will explain that how the Mendel performed his experiment. तो मेंडल ने दो करेक्टर्स को साथ स्टडी किया है, एज आई मैंशन अर्लियर दैट. ठीक है, नाउ मेंडल व्हाट आर द दीज टू करेक्टर्स. तो आप देखेंगे मेंडल ने दो पेरेंट्स लिए. पहला पेरेंट जो था इट प्रोड्यूस्ड राउंड एंड येलो सीड्स. तो जो पहला पेरेंट है, जो फादर है सपोज, इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस राउंड एंड येलो सीड्स, वाइल द अनदर पेरेंट विच इज़ सपोज फीमेल एंड इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स. तो हम दो करेक्टर एक साथ स्टडी कर रहे हैं, एक तो सीड का शेप और दूसरा सीड का कलर. ठीक है, राउंड शेप हो गया, येलो कलर हो गया. सिमिलरली इन द सेकंड पेरेंट वी आर ऑल्सो ऑब्जर्विंग टू डिफरेंट करेक्टर्स. एक तो हो गया सीड का शेप और दूसरा सीड का कलर, रिंकल्ड मतलब टेढ़ा मेढ़ा झुर्रीदार, एंड ग्रीन मीन्स ग्रीन. तो यानी कि दो करेक्टर यहाँ पे भी हम सीड का शेप और सीड के कलर को साथ ही स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, तो नाउ यू आर ऑब्जर्विंग what is the genotype for round and yellow, capital R, capital R, capital Y, capital Y. While what is the genotype for the wrinkled green seed, small r, small r, small y, small y. You can ask one thing कि सर हमेशा किसी को कैपिटल लिखते हैं, तो जैसे डोमिनेंट वाले को हमने कैपिटल लिखा तो स्मॉल वाले को हम हम रेसेसिव वाले को स्मॉल में क्यों लिखते हैं, इसकी जगह हम रिंकल्ड की जगह डब्लू क्यों नहीं लिखते हैं. टू मेक द स्टडी ईजियर वी आर यूजिंग द कैपिटल लेटर ऑफ द डोमिनेंट करेक्टर एंड वी आर यूजिंग द स्मॉल लेटर ऑफ द सेम स्मॉल लेटर इन केस ऑफ द रेसेसिव वन. ठीक है, हेयर द गैमेट जो बनेंगे तो गैमेट के पास एक कैपिटल आर आने की पॉसिबिलिटी है, कैपिटल वाई आने की प्रोबेबिलिटी इन द फर्स्ट केस हेयर. ठीक है, एंड इन द सेकंड केस द प्रोबेबिलिटी इज दैट कि गैमेट के पास एक स्मॉल आर आ सकता है और एक स्मॉल वाई आ सकता है. व्हेन दे विल फ्यूज टुगेदर तो डेफिनेटली कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. द कंडीशन विल बी कैपिटल आर एंड capital R, capital Y, small r and small y. They are going to fuse together and they will form capital R, capital Y and small I. So I want to show you one more thing. I want to just a minute. I want to show you
Okay, here you can see that here these are the gametes, capital R small y, small r and small y. ठीक है, how they are produced, because the condition was capital R, ठीक है, तो डेफिनेट एंड कैपिटल वाई, तो वन आर कैन कम एंड वन वाई कैन कम, तो ये कंडीशन बन गई, ये पहला गेमेट आ गया. तो सिमिलरली व्हाट कैन हैपन इन द सेकंड केस, what can happen in the second case, I want to show you that okay, the condition was small r, small y and small y. So in a gamete only single r can come, or in both condition r is small r is here, so similarly here y can come, so gamete will produce and it will have two genes, small r and small y. ठीक है. Now one more thing I want to show you that when two gametes capital R, capital Y and small r and small y, they will fuse, they will form a new generation, F1 generation. And F1 generation, the what is the condition, capital R will come from here, ठीक है, and small r will come from here, then capital Y will come from here and the small y will come from here. The offspring will be capital R, capital Y, small y. Here you can see that. And the capital R is dominant over small r, so the seed will be round, and capital Y is dominant over small y, the offspring will be what, yellow. ठीक है. Now अब these two, in this is called F1 generation. In F1 generation, ठीक है, we are observing capital R, capital Y, small y is the genotype of the all plants. Now अब क्या किया मेंडल ने, इनको खुद को सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए छोड़ दिया. तो यानी सेल्फ पॉलिनेशन जब होगा तो जाहिर सी बात है कि मेल भी यही होंगे और फीमेल भी यही होंगे, यानी सारे इसका क्रॉस, इनका क्रॉस किसके साथ होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ इनका क्रॉस होगा. ठीक है. तो जाहिर सी बात है कि अब गैमेट क्या बनेंगे, अब क्वेश्चन ये आता है कि गैमेट क्या बनेंगे. तो गैमेट जो बनेंगे आपको याद रखना है इनका सीक्वेंस, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई. तो आपको अभी वन साइडेड चेक करो आप, ये दिस इज़ द सिंबल हैविंग एरो इज कॉल्ड मेल एंड दिस इज़ द सिंबल हैविंग फीमेल. तो यानी कि आप देखेंगे कि एक कैपिटल, पहली कंडीशन में दोनों कैपिटल है, दूसरी कंडीशन में आर स्मॉल हो जा रहा है, वाई कैपिटल हो जा रहा है, तीसरी कंडीशन में आर कैपिटल है तो वाई स्मॉल है, और चौथी कंडीशन में दोनों के दोनों स्मॉल है. तो आपको चार तरह के गैमेट बनाने, पहले में दोनों कैपिटल, एक में आर स्मॉल तो वाई कैपिटल, दूसरे वाले पे आर कैपिटल तो वाई स्मॉल, और तीसरी कंडीशन में चारों स्मॉल. तो सेम गैमेट आपके लेफ्ट साइड भी बनेंगे, फीमेल में भी बनेंगे. एंड जब इनका क्रॉस होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं पनेट स्क्वायर. तो पनेट स्क्वायर में आपको कैसे शो कर रखा है मैं आपको चेक कराता हूँ. ठीक है. तो हेयर दिस कैपिटल आर वाई विल फ्यूज विद द कैपिटल आर वाई, तो ऑफस्प्रिंग विल बी कैपिटल आर कैपिटल वाई. सेकेंड कंडीशन, दिस आर वाई विल फ्यूज विद दिस वन, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई. सिमिलरली अब मैं कोई तीसरा बीच से चेक कराता हूँ, ये चेक करो और ये चेक करो. द कंडीशन विल बी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. एंड वन थिंग यू मस्ट हैव टू रिमेंबर कि कैपिटल वाले को हमेशा पहले लिखा जाता है. ठीक है. तो वाइल ही परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट, तो ही फाइंडेड आउट दैट कि आउट ऑफ 16 ऑफस्प्रिंग, ठीक है, हेयर यू कैन चेक, आउट ऑफ 16 ऑफस्प्रिंग ही ऑब्जर्व कि 9 जो थे वो राउंड येलो प्लांट प्रोड्यूस करने वाले. F2 जनरेशन जब पैदा हुई तो F2 जनरेशन में उसे देखा कि 16 में से 9 प्लांट ऐसे थे जो राउंड और येलो सीड प्रोड्यूस कर रहे थे, 3 प्लांट ऐसे थे जो आपके राउंड और ग्रीन सीड पैदा कर रहे थे. ठीक है. और 3 प्लांट ऐसे थे जो आपके रिंकल्ड और येलो सीड्स प्रोड्यूस करने वाले थे, और आपके 1 सीड ऐसा था जो कि राउंड, जो रिंकल्ड और ग्रीन सीड प्रोड्यूस कर रहा था. यानी कि उसका जो रेशियो मिला 9:3:3:1 का रेशियो मिला. ठीक है. तो यानी कि 9 जो प्लांट थे आउट ऑफ 16, 9 प्लांट्स वर प्रोड्यूसिंग राउंड एंड येलो सीड्स एंड 3 प्लांट्स वर प्रोड्यूसिंग round and first 9 are producing round and yellow, and 3 are producing wrinkled and yellow, and 3 were producing the character which was not present, and it was round yellow, wrinkled yellow, and wrinkled round green and wrinkled green. ठीक है. आई एम राइटिंग हियर वंस अगेन, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट. आर वाई का मतलब हो गया राउंड येलो, दीज वर 9. देन मैं लिख रहा हूँ आपके साथ, आई एम नॉट राइटिंग, इट विल बी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, तो आपको मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ कि राउंड येलो जो हुए वो 9 हुए. ठीक है. और राउंड के साथ जो ग्रीन हुए वो 3 हुए, और
राउंड के साथ जो ग्रीन हुए वो 3 हुए, और रिंकल्ड के साथ येलो जो है वो भी 3 हुए, और रिंकल्ड के साथ जो ग्रीन हुए वो 3 हुए। यानी कि जो रेशियो मिला 9:3:3:1। नाउ यू वन थिंग यू कैन ऑब्जर्व दैट पेरेंट्स क्या थे, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। बट हमने देखा कि यहाँ पर आपका जो ऑफस्प्रिंग पैदा होती है वो राउंड के साथ येलो था और रिंकल्ड के साथ ग्रीन था, पर जो ऑफस्प्रिंग पैदा होती है उसमें राउंड के साथ ग्रीन भी आ गया और रिंकल्ड के साथ येलो सीड भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो करेक्टर थे ही नहीं, जो कॉम्बिनेशन थे ही नहीं करेक्टर्स के बीच में, वो नए कॉम्बिनेशन आपको F2 जनरेशन में देखने के लिए मिले। तो इट मीन्स दो अलग अलग कैरेक्टर आपस में इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं, असॉर्ट कर सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं। दिस वॉज कंक्लूडेड बाई मेंडल एंड it is mentioned here. This law states that when two pairs of the traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of characters। यानी कि कभी हम डाईहाइब्रिड क्रॉस में दो करेक्टर्स की एक साथ स्टडी करते हैं तो ये जो करेक्टर हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं। जैसे हमने देखा था राउंड और येलो पेरेंट्स में एक साथ थे, रिंकल्ड और ग्रीन एक साथ थे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि F2 जनरेशन में सारे के सारे राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन ही मिले, क्योंकि हमें राउंड के साथ येलो का करेक्टर था, वो करेक्टर येलो वाला डिसअपियर होने के बाद राउंड के साथ ग्रीन भी अटैच हो गया। ऐसे ही रिंकल्ड के साथ ग्रीन था तो रिंकल्ड के साथ येलो सीड भी प्रोड्यूस हो गए। तो इट मीन्स टू से दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ करेक्टर्स आर ट्रेड व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, तो दीज करेक्टर्स कैन सेपरेट इंडिपेंडेंटली। यानी करेक्टर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, यानी एक करेक्टर दूसरे करेक्टर पे कोई इम्पैक्ट शो नहीं करता, उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। एंड this law is known as law of independent assortment। Means law of independent assortment expresses that when in a dihybrid cross, when two characters are combined together, while during the gamete formation or the offspring production time, these characters can separate or can assort। assortment का मतलब होता है separate होना, they can assort or they can separate independently from each other। I hope so you understood the today's concept. Still if you have any query you can ask. Thank you, bye bye and have a nice day.